भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं च नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि. So we are studying Canto 1, Chapter 10, Lord Krishna's departure for Dwarka, text number 23. Savayam yat padam atra shurya Savayam yat padam atra suryo Jitendri nirjita matra ishvana Pashyanti bhakti utkalitaamalatmana Nan esha sattvam parimarshatum arhati Savayam yat padam atra suryo Jitendri nirjita matra ishvana Pashyanti bhakti उत्कलितामलात्मना ननु एष सत्वं परिमार्शतुम् अर्हति स वा अयं या पदमात्र सूर्यो जितेन्द्र निर्जितमात्रीश्वना पाश्यन्ति भक्ति उत्कलितामलात्मना ननु एष सत्वं परिमार्शतुम् अर्हति. आज से श्लोका पढ़ो. अयं यत्पदम् अत्र सूरयो जितेन्द्रिय निर्जिता मतऋषवणः पश्यन्ति भक्ति उत्कलितमालात्मना नान्वैषा सत्त्वं परिमार्थितुम् अर्हति. Word to word meaning. Saha, he, way, by providence. I am. This, yet, that which. Padam atra, here is the same personality of Godhead, Shri Krishna. Suryaha, great devotees. Jita Indriya, who have overcome the influence of the senses. Nirjita, thoroughly controlled. Matar Shivanaha, life. Pashyanti, can see. Bhakti, by dint of devotional service. Utkalita, developed. Amala Atmana, those whose minds are thoroughly cleansed. Nan Ishaha, certainly by this only. Sattvam, existence. Parimarshitum, for purifying the mind completely. Arhati, deserve. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Here is the same Supreme Personality of Godhead, whose transcendental form is experienced by a great devotee, who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service and full control of life and the senses. And that is the only way to purify existence. क्या बोला है कि यहाँ पे सामने हरे कृष्ण पाठ करते हैं. Please be regular with your reports. Hope you are doing well. So क्या बोला है? Here is the same Supreme Personality of Godhead whose transcendental form is experienced by great devotees. तो कह रहे कि मेरे सामने वही भगवान है. अभी जैसे पांडवों के साथ में he has an intimate relation. The Pandavas are able to see Krishna face to face. Keh rahe he is the same supreme person who has the transcendental form which is experienced by great devotees. कि बड़े-बड़े great devotees हैं, उन्होंने experience किया है इसको. जो who are the great devotees? Who are the great devotees who are complete means those who have completely cleansed of material consciousness. और material consciousness से हम कैसे clean होते हैं? By dint of rigid devotional service and full control of life and the senses. And that is the only way to purify existence. If you really want to purify your existence that is contaminated, we are in a contaminated consciousness. For that, we need to have rigid devotional service. देखिए, हमें अलग से अब बोले कि मुझ में ये बुराई है, अब अलग से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप भक्ति में लगे रहिए, अपने आप सारी जितनी भी गंदगी है सब साफ हो जाएगी. हमारे अनर्थक अपने आप ही निकल जाएंगे. ठीक है. Asa, will you read the purport? As it is stated in Bhagavad Gita, the Lord can be known in his real nature by dint of pure devotional service only. So it is stated here that only the great devotees of the Lord who are able to clear the mind of all material dust by rigid devotional service can experience the Lord as he is.
Jitendriya means one who has full control over the senses. The senses are active parts uh, of the body, and their activities can not be stopped. The artificial means of yogic processes to make the senses inactive has proved to be object failure. Even in the case of great yogis like Vishwamitra Muni, Vishwamitra Muni controlled the senses by yogic trance, when the but when he happened to meet Menaka, a heavenly society woman, he became a victim of sex, and the artificial way of controlling the senses failed. But in the case of pure devotees, the senses are not at all artificially stopped from doing anything, but they are given different good engagements. When the senses are engaged in more attractive activities, there is no chance of their being attracted by any inferior engagements. In माता जी थोड़ा ज्यादा ही ऊपर कर दिया. अभी ठीक है. हाँ, inferior engagements. In the Bhagavad Gita, it is said that the senses can be controlled only by better engagements. Devotional service necessitates purifying the senses of engaging them in activities of devotional service. Devotional service is not in action. Anything done in service of Lord becomes at once purified of its material nature. The material conception is due to ignorance only. There is nothing beyond Vasudeva. The Vasudeva conception gradually develops into the heart of learned after a prolonged acceleration of perceptive organs. But the process ends in the knowledge of accepting Vasudeva as all in all. In a case of devotional service, this very small method is accepted from the very beginning, and by the grace of the Lord, all factual knowledge becomes revealed in the heart of a devotee due to dictation by the Lord from within. Therefore, controlling the senses by devotional service is only an easiest means. सो यहाँ पे क्या बोला, देखो वेरी मच क्लियर इन द पर्पट. जैसे मैंने बोला कि देखिए हमारी जो इंद्रियां हैं, वी कैन नॉट लाइक, जितेंद्रिय का मतलब यहाँ पे लिखा है वन हु हैज द फुल कंट्रोल ओवर द सेंसेस. अगर हम लोग देखें तो हमारी इंद्रियां क्या है, मतलब एक अभी यहाँ पे है तो कभी वहां पे है. तो लाइक आईज वांटेड टू सी समथिंग, ears wanted to hear something, jibha wanted to eat something. Senses are not controlled. We get allured by the material existence. The thing is, अब आर्टिफिशियली तो हम आप इसको क्या कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे विश्वामित्र मुनि, he tried to control his senses like forcibly, नहीं. हाँ, but हुआ क्या, when the Menaka was there, chin means he became the victim of sex life. हाँ, but the similar way we can see the example of हरिदास ठाकुर. हरदास ठाकुर का यदि हम उदाहरण देखें तो वो माना करे थे उनके पास तो प्रोस्टिट्यूट आई, इवन माया देवी खुद आई उनका टेस्ट लेने को, मगर ही वाज सो अब्सॉर्ब्ड इन डिवोशनल सर्विस दैट ही डिडंट बॉदर हिम. बोला कि नहीं आप बैठो, मैं थोड़ा सा माला कर लो, फिर करेंगे साथ में, एंजॉय करेंगे. बट लाइक दैट व्हाट हैड हैपेंड बाय हिज इन्फ्लुएंस, द माया देवी द प्रोस्टिट्यूट बिकम डिवोटी. हाँ, तो ये भक्ति की शक्ति है कि आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है. सी सेंसेस रिक्वायर्ड एंगेजमेंट्स लाइक देयर, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, व्हेन द स्मॉल चाइल्ड इज देयर, सो व्हाट हैपेंड टू हिम. आप छोटा बच्चा वो बाय नेचर शरारती है, ठीक है, उसको बोला कि बैठो यहाँ पे, नहीं बैठेगा वो. बट ये कि अगर आप उसको किसी चीज में एंगेज कर दो, अच्छी चीज में, ही विल रिमेन बिजी, विल नॉट बॉदर यू, है ना. तो सिमिलरली आवर सेंसेस बिकॉज ऑफ इन कांटेक्ट विद द मटेरियल नेचर क्या है, इंफीरियर एंगेजमेंट्स में है, ठीक है, जो तो उसको इस कर्म बंधन में बांध देती है, ठीक है. सो इसमें कि जैसे भगवत गीता में लिखा है द सेंसेस कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय बेटर एंगेजमेंट. तो बेटर एंगेजमेंट क्या है, डिवोशनल सर्विस. जो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसको शुद्धिकरण भी हो जाएगा, इट गेट प्यूरिफाइड. एनीथिंग डन इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड बिकम एट वंस प्यूरिफाइड बाय इट्स नेचर. हाँ, कोई भी चीज जो भगवान की सेवा में लगती है वो शुद्ध हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम पर्सन इज प्योर हिमसेल्फ, पवित्रमिदम उत्तमम. हाँ, so the process is to engage in devotional service, then the heart, all dust accumulated there will be purified and the real knowledge will be revealed to the person.
So controlling the sensible devotional service is the only and easiest me. तो अगर हम बोले कि हम इंद्रियों को किसी और तरीके से कंट्रोल करेंगे तो नहीं पॉसिबल है। तो ये कि भगवान की सेवा में लगाओगे अपने आप है। अब देखो खाने का मन करता है भगवान के लिए भोग बनाइए प्रसाद पाइए जीव कंट्रोल मन शांत हो जाता है संतुष्ट होता है। हाँ बट यही दूसरी तरफ if we just try to restrain नहीं नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना then it's a difficulty isn't it? So यहाँ पे लिखा है तो द बेस्ट वे एंड द इजीएस्ट वे इज टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। आप पूरी तरह बिजी हो भक्ति में कहाँ समय कुछ और करने का। लाइक नाउ वी आर स्टडिंग भागवतम देन वी कंटेम्पलेट ऑन क्या बोला था ओके देन भगवत गीता बोलती है प्रसाद पाना चाहिए बाहर का नहीं खाना है इम्प्लीमेंटेड सुना फिर कुकिंग करने में बिजी हो गए हो। हाँ ये भगवान का श्रृंगार कर रहे हो या मंदिर साफ कर रहे हो या श्रवण कर रहे हो या रीडिंग कर रहे हो कीर्तन कर रहे हो where is the time for Maya? So there should be no gaps. Engage in devotional service even if you are carrying as अभी जैसे हम भगवत गीता ही पढ़ रहे थे उसमें लिखा था like the soft heartedness and engagement in devotional service made one fit to receive the transcendental knowledge। क्या चीज क्या स्टेटमेंट थी वो फर्स्ट चैप्टर के लास्ट जो परपट है उसमें अंत में ये है कि सॉफ्ट हार्टेडनेस एंड what is the next soft heartedness and the engagement in devotional service makes one fit to receive this transcendental knowledge। अब देखिए सॉफ्ट हृदय तो हमारा पता नहीं क्योंकि मलिनता बहुत है मगर एक जो सेकंड पॉइंट था दैट वाज अभी भी हम लोगों में दूषित 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 तो है ही हमने शुद्ध तो नहीं हुआ। तो क्या लिखा था engage in devotional service one who is engaged in the devotional service can receive this transcendental knowledge। तो इसको समझ सकता है रिसीव कर सकता है। तो मतलब भक्ति में लगने से क्या है हमारा जितना भी कचरा है सब बाहर निकल जाएगा then the transcendental knowledge can take place in our heart understood in that way। ठीक है तो easiest way is to engage in devotional service। आगे आता है सवा अयम साख्यानुगीत सत्तथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एक ईशो जगदात्मलीलया सृजाति अवतीयति न तत्र साजते। Oh, dear friends, here is that very personality of Godhead, whose attractive and confidential pastimes are described in confidential part of Vedic literature by his great devotee। कह रहे यहाँ पे वो भगवान है जो सर्व आकर्षित हैं। कृष्ण का नाम ही कृष्ण का मतलब ये है ऑल अट्रैक्टिव इज ऑल अट्रैक्टिव एंड जिनकी जो कॉन्फिडेंशियल लीलाएं हैं हाँ शास्त्रों के कॉन्फिडेंशियल पार्ट्स में उनके ग्रेट भक्तों द्वारा वर्णित हैं। It is he only who create and maintain and annihilate the material world and yet remain unaffected। देखा जाए तो भगवान ही क्रिएशन कर रहे हैं मेंटेनेंस कर रहे हैं एनिलेशन कर रहे हैं। ऐसा तो देखा जाता है ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं शिव जी एनिलेशन कर रहे हैं विष्णु मेंटेन कर रहे हैं मगर वो किनके अवतार है गुणावतार किनके हैं दे आर दी मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम ओरिजिन इज कृष्णा ओनली। तो प्राइमरी क्रिएटर कौन है भगवान ब्रह्मा जी नहीं है कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर तो एनिलेशन के लिए भी जो रुद्र जो शिव जी महादेव शक्ति लेते हैं भगवान कृष्ण से आती है। हाँ तो भगवान देखिए भौतिक जगत से कार्य भी कर रहे हैं मगर अफेक्टेड भी नहीं होते है ना। तो ऐसा बताया तो तात्पर्य आज तक पढ़ो ट्रांसलेशन परपट। As it is stated in Bhagavad Gita, all the Vedic literatures are glorifying the greatness of Lord Sri Krishna. Here it is confirmed in Bhagavatam also. The Vedas are expanded by many branches and sub branches by great devotees and empowered incarnation of Lord like Vyasa Narada, Sukadev Goswami, the Kumaras, Kapila Prahlad, Janaka Bali, and Yamaraj Bhatt. In Srimad Bhagavatam especially, the confidential part of his activities are described by confidential devotee Sukadeva Goswami. In Vedanta Sutras or Upanishad, there is only a hint of the confidential part of his pastimes. In such Vedic literatures as the Upanishads, the Lord has expressively been distinguished by the mundane conception of his existence. His identity being fully spiritual, his form, name, quality, and paraphernalia, etc., have been elaborately distinguished from matter, and therefore he is sometimes misunderstood by less intelligent person as impersonal. But factually he is personal, supreme person, Bhagavan, and he is partially represented as Paramatma or impersonal Brahman.
क्या लिखा है, जैसे जो भी शास्त्र हैं, वैदिक लिटरेचर हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। जैसे हम भागवतम पढ़ रहे हैं, पूरी भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भगवद गीता भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, कई वेदास हैं जो बताता है। ठीक है, मैं काफ़ी वेदा उसकी काफ़ी ब्रांचेस इन ब्रांचेस हैं, जिसमें कई बड़े बड़े भक्तों ने भगवान की कॉन्फिडेंशियल लीलाओं को वर्णन किया। जैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे परीक्षित महाराज को पूरा वर्णन करते हैं। तो वेदांत सूत्र में कई कई वेदांत सूत्र उपनिषद हैं, भगवान की कॉन्फिडेंशियल डिवोटी कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, उनकी लीलाओं के सारे एक्सप्लेन है। ठीक है, लॉर्ड हैज एक्सप्रेसली बीन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मुंडन कंसेप्शन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। और ये भी बताया गया कि भगवान भौतिक जगत के नहीं, आध्यात्मिक जगत से हैं, और सब उन्हीं की एनर्जी है। So his identity being fully spiritual, his form, name, quality, phenomena has been elaborate, distinguished from matter, and therefore is sometimes misunderstood. अब कई लोग देखिए भगवान मनुष्य रूप में अवतार ले लेते हैं, तो बेवकूफ मूर्ख लोग, नराधमा लोग समझ लेते हैं ये हमारी तरह ही है। ठीक है, जैसे दुर्योधन था, जब भगवान जब शांति दूत बन के गए, तो भगवान ने क्या है, अपना विराट रूप दिखाया, पूरा नहीं, पार्शियल वाला। हाँ, दुर्योधन देखा तो उसको लगा ये कोई मिस्टेक है, तो मेरी तरह ही है, बस मुझसे थोड़ा बेहतर है। मूर्ख लोग हैं। क्या? भगवान को भगवान नहीं समझते, कहते मेरी तरह ही है, बस मुझसे थोड़ा सा बेहतर है, और कुछ नहीं। हाँ, ये मूर्ख लोग होते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। सो जो मूर्ख लोग हैं उनको कई बार क्या है, नहीं समझ पाते पूर्णतः, और कभी कभी तो उनको ब्रह्म समझ लेते हैं। फैक्चुअली ही इज द सुप्रीम पर्सन भगवान। तो भगवान क्या है, वो नहीं, हाथ स्वयं लगा के भगवान है। गैस और जो परमात्मा और इम्पर्सनल जो ब्रह्मन है, वो होने की क्या है, केला है वहाँ पे। जैसे आप सूर्य के नीचे नीचे हो, ठीक है, सूर्य का वो तो केला खेला। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, सूर्य की रोशनी मुझ में पड़ रही है, बट क्या सूर्य पड़ रहा है आप पे, ना बोलते या सूर्य सूर्य नहीं, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, और सूर्य की रोशनी को सूर्य कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब देखिए जो भगवान है, या उनको परमात्मा या इम्पर्सनल फीचर है, तो ये भगवान से आइडेंटिकल है, मगर जो भगवान फीचर फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग है ना। सो लाइक दैट वे। तो आगे बढ़ते हैं। यदा हि अधर्मेण तमुधियो नृप जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वता किल धत्ते भगं सात्यमृतं दयं यशो भव्या रूपाणि ददत् युगे युगे। Whenever there are kings and administrators living like animals in the lowest modes of existence, the Lord in his transcendental form manifests his supreme power. कि जब भी क्या है, कुछ गड़बड़ होती है, यदा यदा धर्म से ग्लानि, या राज्य में अच्छा नहीं हो रहा, तो भगवान अपने ही सुपर पावर मैनिफेस्ट करते हैं। Show special mercy to the faithful, perform wonderful activities, and many various transcendental forms as is necessary in different periods and stages. तो कहते हैं ना, दुष्कृता नाम मूढ़ा, क्या कहते हैं, कि जो दुर्जन है उनका संहार और भक्तों के भले के लिए उनको लीलाएं दिखाने के लिए भगवान आते हैं, और अलग अलग अवतार में अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थिति के अनुसार भगवान अवतरित होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के समय नरसिम्हा का अवतार लिया, फिर प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में आइडियल किंग, एंड कृष्ण के रूप में आए, तो लाइक दैट वराह अवतार लिया, धरती को धरातल से निकालना था। सो डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेसेस लॉर्ड टेक्स अ डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, सो पार्थ विल यू रीड द परपट? आप पढ़ोगे? Arthur, you go ahead. पढ़ो। Yes, Mataji. As mentioned above, the cosmic creation is the property of Supreme Lord. This is the basic philosophy of Vishwabnishad. Everything is property of Supreme Being. No one should encroach upon the property of Supreme Lord. One should accept only what is kindly awarded by him. Therefore, the earth on any other planet or universe is the absolute property of Lord. The living beings are certainly his part and parcel, or the sons, and thus every one of them has a right to live at mercy of Lord, to execute his prescribed work. No one therefore can encroach upon the right of another individual man or animal without being so sanctioned by the Lord. The king or the administrator is representative of the Lord to look after management of Lord's will. He must therefore be recognized person like Maharaja Yudhishthira Parikshit. Such kings have full responsibility and knowledge from authorities upon the administration of the world.
But at time, due to the influence of ignorance, mode of material nature, tamoguna, the lowest of material mode, king and administrator come into the power without knowledge and responsibility, and such a foolish administrator live like animals for the sake of their own personal interest. The result is that the whole atmosphere becomes surcharged with anarchy and vicious element. The result is nepotism, bribery, cheating, aggression, and therefore famine, epidemic, war, and similar other disturbing features become prominent in human society. And the devotees of the Lord or the faithful are persecuted by all means. All these symptoms indicate the time of an incarnation of Lord to re-establish the principle of religion and to banish the maladministrators. This also confirmed in Bhagavad Gita. The Lord then appeared in transcendental form without any tinge of material qualities. He descended just to keep the state of his creation in a normal condition. The normal condition is the is that the Lord has provided each and every planet with all the needs of native living beings. They can happily live and execute their predestined occupations to attain salvation at the end. Following the rules and regulations mentioned in revealed scriptures, the material world is created to satisfy the whims of the Nityabadha or everlasting conditioned soul, just as naughty boys are provided with the playing cradles. Otherwise, there was no need of material world. But when they become intoxicated with power of material science to exploit the resources unlawfully without the sanction of the Lord, and that also only for sense gratification. There is necessity of Lord's incarnation to chastise the rebellious and to protect the faithful. When he descends, he executes superhuman acts just to prove his supreme right, and materialists like Ravana, Hiranyakashipu, and Kamsa are sufficiently punished. He acts in a manner which no one can imitate. For example, the Lord, when he appeared as Rama, bridges an Indian Ocean. When he appeared as Krishna, from his very childhood, he showed superhuman activities by killing Putana, Aghasur, Shaktashur, Kaliya, etc. And then his maternal uncle Kamsa. When he was at Dwarika, he married 16,108 queens, and all of them were blessed with sufficient number of children. The sum total of his personal family member amounted to about 1 lakh, popularly known as Yaduvamsha. And again during his lifetime, he managed to banish them all. He is famous as Govardhan Dhari Hari because he lifted at the age of only 7 the hill known as Govardhana. The Lord killed many undesirable kings in his time, and as a Kshatriya, he fought chivalrously. He is famous as Asamurdhva, unparalleled. No one is equal to or greater than him. थैंक यू. क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे कि जैसे ईशोपनिषद में मेंशन है कि हर एक को ना कोटा अलॉटेड है, मतलब उसके हिसाब से. और ये कहते हैं ईश्वास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगते जगत, कि एवरीथिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड. सारी प्रॉपर्टी किसकी है? उनकी है. अब देखो हम पैदा होते हैं, हम बोलते हैं घर मेरा, ये जमीन मेरी, पर आपसे पहले से ये जमीन है. हाँ, आपके पैदा होने से पहले से जमीन है, तब किसी और की होगी. सो दैट मीन्स इट डजंट बिलोंग टू यू अल्टीमेटली, इजंट. हम आगे आते हैं, हम बोलते हैं मेरा है, बट नो, it's all the property belongs to Krishna. As says Bhoktaram Yugatapsam Sarvaloka Maheshwaram. And this property, it is like हमें कुछ allot होता है, that is only to use in the service of Krishna. कि भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए. तो जो किंग है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, वो भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. ही वॉज देयर फॉर भी, जैसे
कि जो राजा हैं भगवान के साथ हार्मनी में होते हैं, तो उनको कहते हैं पर्सन लाइक महाराज परीक्षित, सच किंग्स हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड नॉलेज फ्रॉम अथॉरिटी, उनके पास पूरा ज्ञान है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. Due to the influence of ignorance, mode of material nature, the lowest of material modes, kings, administrator come into power without knowledge and responsibility. अब देखो तमोगुण का प्रभाव रहा, तो ऐसे ऐसे राजा भी बने जो जानवरों की प्रवृत्ति वाले रहे, ठीक है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए. रिजल्टेड दैट पूरा एटमॉस्फेयर क्या है, खराब हो गया, ठीक है, बारबरी होगी, चीटिंग होगी, एग्रेशन हो गया, भ्रष्टाचार सब कुछ फैला हुआ है. हाँ, all these symptoms indicate that the time of incarnation Lord is to re-establish the principle of religion. जब भी ऐसा होता है, जब धरती पे पाप बढ़ा था, तो धरती मदर अर्थ वेंट टू ब्रह्मा जी, बोला कि ऐसे ऐसे राजा लोग बन गए हैं, इतना दुष्कर्म कर रहे हैं, मैं इनके बोझ के तले नहीं सहा जाता, मुझे बचाओ. देन लॉर्ड ब्रह्मा वेंट टू वेंट ऑल डेमिगॉड्स के साथ में क्षीर सागर में जाते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जल्दी अवतरित हूंगा अपने कृष्ण रूप में, एंड ऑल द डेमिगॉड्स शुड कम एंड एसोसिएट विद मी. सो इस तरीके से भगवान आते हैं, जब भी धर्म में ग्लानि होती है तो भगवान डिसेंड होते हैं, या अपने किसी भक्त को भेजते हैं या खुद आते हैं, ठीक है, उस तरीके से कहते हैं. द लॉर्ड देन अपीयर इन हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म विदाउट एनी चेंज ऑफ मटेरियल क्वालिटी. तो भगवान अपने दिव्य रूप के साथ ही आते हैं, ये नहीं हमारी तरह भौतिक शरीर धारण कर लेते हैं, नहीं नहीं, पूरे दिव्य होते हैं, ठीक है. सो अब ये जो नित्यबद्ध लोग हैं, इनके लिए भगवान क्या करते हैं, ठीक है, पहले तो दुष्ट लोगों को तो सजा मिलती है, और जैसे हिरण्यकशिपु कंस, उनको पनिश किया गया, और जो भक्त लोग थे उनको क्या है, उनके लिए लीला की भगवान ने, जैसे वृंदावन में लीला हुई है, द्वारका में लीला हुई, तो इस तरह से लीलाएं होती हैं. भगवान का जैसे बोला कि 16,108 रानियां थी, भाई आज के जमाने में कौन रख सकता है, और एक एक रानी से 10-10 बच्चे थे भगवान के, तो कहते हैं भगवान की खुद की फैमिली 1 लाख नंबर था यदुवंश का. सो लाइक दैट पे, तो इस तरीके से भगवान आते हैं, जैसे गोवर्धन धारी लीला की उन्होंने, ठीक है, गोवर्धन उठाया. सो कई लीलाएं की, कालिया का दमन किया, ठीक है, एंड कई लॉर्ड किल्ड मेनी अनडिजायरेबल किंग in his time, and as a Kshatriya he fought chivalrously. He is famous as Ashmoradhava, unparalleled. No one is equal to or greater than him. तो इसलिए भगवान से कोई बराबर नहीं है और कोई उनके इक्वल भी नहीं है. सो लाइक लॉर्ड कम टू डू सम फेवर, और जब भी कुछ गड़बड़ होता है, हाँ, धरती पे बोझ बढ़ता है, तो भगवान स्वयं आते हैं, हाँ, और अपने भक्तों के लिए प्रेरित करने के लिए, और जीवात्मा को भगवत धाम लेने के लिए भी उनको प्रेरित करते. देखो भाई, साधारण नहीं, समझ लो, मेरी जो एक्टिविटीज है, दीज आर नॉट नॉर्मल. जैसे भगवत गीता में भगवान कहते जन्म कर्मा चामे दिव्यम, जो मेरी अपीयरेंस और मेरी लीलाओं को समझ ले, वो कभी भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता. तो हमें समझना चाहिए कि भगवान अगर भौतिक जगत में आते भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तरह भौतिक जगत में सुख पाने के लिए आए, नहीं. ही इज एंजॉयिंग देयर इन हिज अबोर्ड, बट ही जस्ट कम हियर टू गिव अस एन एक्सपीरियंस कि देखो कितना आनंद है, ये लीला है मेरी, देखो कितना आनंद में रह सकते हो मेरी सेवा में. तो ये बताने के लिए, ताकि हम प्रेरित हो सके कि हम भगवत धाम जाएं, और जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार हो सके अपने भक्तों की सेवा के लिए. तो इस प्रकार से भगवान आते हैं, ठीक है. तो जो राजा है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो द किंग शुड बी एक्ट इन हार्मनी विद द सुप्रीम पर्सन, अदरवाइज उनके राज्य में क्या है, क्योस होता है, बहुत ज्यादा जैसे दुर्गति रहती है. अभी देखोगे जहाँ पे भी संत महात्माओं की कदर नहीं होती है, उस राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं होता. जैसे महाराष्ट्र में देखा कई संतों का बुरा हुआ, तो बुरी हालत है महाराष्ट्र. तो उस तरीके से तो ऐसा बोला जाता है. तो यहीं पे विराम लेते हैं. आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, प्लीज गो है. हरे कृष्ण. कुछ कहना है किसी को? एनी कमेंट और एनी रियलाइजेशन? यस आस्था. माता जी, मुझे ना आस्था थोड़ा याद लाउडली आ रहा बोलो. था, मुझे मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था कि ना जब वो पर्सनल वाली बात आ रही थी ना, हाँ, कि मतलब लाइट एंड ऑल, तो फिर आप ही की गुरु माता जी का कोट याद आ रहा था. वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि लाइट ना, लाइट के लिए ना टॉर्च भी चाहिए होता है. तो लाइट मतलब लाइट भी किसी चीज का उसी प्रकार सोर्स से होना सूर्य चाहिए ना, लाइट है, तो तभी सूर्य भी तो तो होगा, आएगा. तभी तो लाइट होगी. हाँ. वही. और एक और चीज थी कि जैसे रिगार्डिंग था ना कि भगवान आते हैं और अपनी डिफरेंट डिफरेंट सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट. तो फिर शिल प्रभुपाद पर्वत में लिख रहे हैं कि कितने उनके कितनी लीला है. वो गिरधरी है, 16,000 16,108 वाइफ से मैरिज किया. तो फिर मेरा यही था कि
मतलब इन मटेरियल वर्ल्ड देखोगे ना तो भगवान जब कृष्ण की बात होती है तब इन जनरल लोग सिर्फ यही देखते हैं कि भगवान ने रासलीला की, लेकिन श्रील प्रभुपाद वहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि देखो भाई इन्होंने गिरधारी है और ये 16,108 पत्नी को भी शादी किया और एक एक के साथ एक एक टाइम पे थे। तो वही था कि मतलब भौतिकता वाले लोग ये देख ही नहीं पाते कि भगवान ने अरे गोवर्धन पर्वत भी उठाया होता है, बस वो कॉपी यदि करते हैं ना भगवान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या कभी सीरियल या फिर कभी देखोगे मूवीज बनती है, स्टूपिड जो मूवीज ये लोग बनाते हैं रासलीला वगैरह करके, तो भगवान को बोलते हैं रासलीला करके वो कैरेक्टर्स दिखाते हैं ऐसा है, लेकिन उनको ये भी शो करना चाहिए ना कि भगवान तो गोवर्धन पर्वत उठा रहे तो आप भी उठाओ। Like that। अब से एक पत्नी नहीं संभाली जाती 16,000 से दूर की बात। यस, तो देखो वही ना, एक प्रभात ने सब कुछ सही सही बताया है, सब कुछ मेंशन, फिर भी बेवकूफ लोग नहीं समझ पाते। तो इसके लिए भी शुद्धता चाहिए ना। तो हमें भी कहीं ना कहीं डाउट है, बट हम भक्ति में लगे रहेंगे, श्रवण करेंगे रोज, तो हमारे भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसा। और किसी को कुछ कहना है? एनीवन एल्स? थैंक यू आस्था फॉर मेकिंग द पॉइंट्स। और कुछ? चलिए फिर कुछ नहीं है तो विल बी स्टॉपिंग हियर, सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे, राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे, राम राम हरे हरे। जय सुरबाद की जय। All the December devotees. जय Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी।